Hello friends, this is Somaranjan Nayak and I welcome you to my channel The Mango Researcher. Today we'll be speaking specifically regarding the pressure that one student experiences when he or she joins IIT. Be it a BTech student, MTech student or PhD student or MS student, any course you take up, pressure is always there on the student. And so this video becomes very important as I'll be discussing about the various types of pressure that one student experiences when he or she joins IIT. So let's dive in. The first pressure that the student experiences is self-expectation. Like you will be the best student in your school. But today, when you are into IIT Bombay, for example, when you come into IIT Bombay, you are sitting with the best of their respective schools. The best students in the country have congregated here. Now, a pressure builds up in the mind. Can you manage to hold up to the best position? Like, can you prove yourself to the best of this pool too? स्कूल में तो बेस्ट थे ही, बट ये जो बेस्ट का पूल बना है, क्या इसमें भी तुम बेस्ट बन सकते हो? So that pressure is the very first pressure that strikes you when you join IITs. And after a couple of examinations, it is generally seen that student starts developing anxieties. And over the period of time, the pressure builds up. Because suppose there is a student who has joined a particular department and he sees that even though he was the best in his school, he's not able to perform, then that eats him up from inside. So that is the first pressure that you experience when you come into IIT, in case you are not able to maintain your position. So my advice over here is that भीड़ का पार्ट मत बनो. अपनी एक इंडिविजुअलिटी को क्रिएट करो या सर्च करो. बहुत इंपॉर्टेंट है. कंपीट अगर करना है तो खुद से करो. ये चीज हर कोई बोलता है, बट प्रैक्टिस करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है एट टाइम्स. बट once you start practicing that, it's very easy. You don't compare yourself to someone else. Never do that. Okay. So भीड़ का हिस्सा मत बनो. अपने से जितना हो सकता है, जैसे हो सकता है, जब भी हो सकता है, करो. पढ़ो, लिखो और एक कंप्लीट ऑलराउंडर ह्यूमन बीइंग बनने की कोशिश करो. जस्ट किताबों में ना रह जाओ. यही मेरी आपसे एडवाइस होगी. बिकॉज IIT is not just about a piece of paper called a degree. It's much more than that. Somewhere in the I button you can see my walk from my hostel to the lab. तो उसमें बीच बीच में मैंने बताया हुआ क्या क्या फैसिलिटीज हैं. सो IIT doesn't just give you a sheet of paper called a degree, but also provides you a whole lot of other things that you need to explore. बहुत कुछ होता है. फेस्टिवल से लेके बहुत सारे इवेंट्स रहते हैं that you have to explore. So expectation, that is self expectation, is the first pressure that a student builds up when he or she joins IIT. The second pressure that a student experiences is management pressure. Whether he or she can manage his or her day or not. यहाँ पे आपको ग्रेड्स की भी चिंता रहती है. यहाँ पे आपको लैब्स रहते हैं, थ्योरी क्लासेस रहते हैं. ठीक है. And then you have NSS, you have NSO, if you have any other interest depending upon what you want to do. स्पोर्ट्स हो गया, आर्ट्स हो गया, सिंगिंग हो गया, डांस हो गया, ड्रामा हो गया. तो हर चीज को बैलेंस बना के चलना पड़ता है. एट टाइम्स इट सच हैपेंस कि बैलेंस बन नहीं पाता बिकॉज आप डिसिप्लिन नहीं हो. एंड जब आप डिसिप्लिन नहीं हो, देन यू आर नॉट एबल टू एलोकेट टाइम टू योर इंटरेस्ट or things that which are important for your career, or things which are important for your career. So ये दूसरा प्रेशर है. ठीक है. इसका एडवाइस ये रहेगा मेरी तरफ से कि ग्रेजुअली लोड को बिल्डअप करो. ऐसा नहीं कि एक सेमेस्टर में ही आपको डांस भी करना है, आपको म्यूजिक भी करना है, आपको ड्रम भी बजाना है, आपको स्पोर्ट्स भी करना है, आपको ग्रेड्स भी करना है, आपको थ्योरी भी पढ़ना है, आपको सब कुछ करना है. नहीं. ग्रेजुअली खुद को पहचानो, अपने कैपेबिलिटीज को पहचानो, अंडरस्टैंड योरसेल्फ वेल, एंड देन ओनली एड द लोड. ठीक है. ग्रेजुअली लोड बिल्डअप करते चलो. ऐसा नहीं कि एक बार में कर लोगे. व्हेन यू ग्रेजुअली बिल्ड अप द लोड, इट बिकम्स अ हैबिट फॉर यू टू मैनेज थिंग्स, एंड देन यू डोंट गेट द प्रेशर. So in case you have a pressure of getting into IIT, then today's sponsors, that is Unacademy, has got a solution for you. They are bringing India's biggest weekly scholarship tests for IIT JEE aspirants.
So the enrollment is free and you can win scholarships worth 4 crores which is available. On the left hand side you can see the QR code where you can scan and enroll. You can take up this weekly scholarship test using your Android phone or Android device. IIT JEE Combat happens every Sunday at 11 a.m. In order to get a 10% discount, you can use the promo code MR123. So the biggest advantages of this weekly scholarship test is live leaderboard ranking where you stand in the race, you can see it. 60 questions, 21 minutes. Scholarship is worth 4 crore that I've already said. And separate contest for class 11, 12 and droppers batch. So enroll for free every Sunday at 11 p.m. to take the test. Now you can go to the syllabus. You can see the syllabus out here for physics, chemistry and mathematics for class 11. This is for class 12 and this is for the droppers batch. So I hope that in order to release the pressure of getting into IIT, you will use this test wisely and benefit from it. So we can go ahead with the other pressures that you get when you get into IIT now. The third pressure that you experience is called the societal pressure. आपको पता है ना जब न्यूज में क्या आता है 1.5 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ ऐसे करोड़ वाले जॉब स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं। तो घर से एक बार मेरे एमटेक में मेरे पापा का कॉल आया कि बेटा सबकी करोड़ों में जॉब लग रहे हैं, तुम कुछ कर नहीं रहे। अब मैंने पापा को बताया नहीं था कि मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठ रहा हूँ क्योंकि मुझे पीएचडी करनी है। तब मैंने वो छुपाया हुआ था उनसे। तो मैंने बोला कि बीटेक्स का होता है, एमटेक का थोड़ा ना प्लेसमेंट होता है उतना ज्यादा। दैट इज ट्रू, वो झूठ नहीं था। करोड़ों की जॉब मोस्टली बीटेक्स में ही लगता है। लेकिन ये जो चीज है कि पर ये बात भी सही है कि सबके करोड़ों में जॉब नहीं लगते। बहुत स्पेसिफिक जॉब्स होते हैं जो आपको करोड़ में देंगे। शायद हो सकता है कि आउटसाइड द कंट्री हो, डिफिकल्ट लोकेशन हो सकता है, ठीक है, जहां पर आपको पैसा ही एक चीज है जो खींच के लेगी। सपोज आपका ये प्लान है कि आप स्क्रम बर्जर ज्वाइन करोगे, 1-1.5 साल के अंदर छोड़ के अपने एमएस के लिए चले जाओगे। तो ये जो सोसाइटल प्रेशर है दैट यू आर अ टॉप स्टूडेंट, यू नीड टू गेट अ टॉप जॉब विथ टॉप नॉच सैलरी, ये भी प्रेशर बिल्डअप करती है। ये आप पे ज्यादा करती है कि नहीं उस पर आप क्वेश्चन कर सकते हो। आपके पेरेंट्स पे तो बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है क्योंकि किसी को पता चल गया कि यार इसका लड़का तो यार आईआईटी बॉम्बे में है, तो उसका कैसा 8 लाख का पैकेज लग सकता है। भाई उसका डिपार्टमेंट भी तो देखो, वो कौन से डिपार्टमेंट में था और वो खुश है कि नहीं। वो अगर प्रोफाइल से खुश है, अगर उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में आगे बढ़ सकता है तो खुश है, ठीक है ना, छोड़ो ना उसे। और सोसाइटी तो ऐसे है नहीं कि आपकी टांग खींचे बिना छोड़ दे आपको। तो ये प्रेशर बोथ पेरेंट्स के लिए भी होता है और बोथ स्टूडेंट्स के लिए भी होता है, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए इस चीज का एडवाइस ये है कि यू नीड टू कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विथ योर पेरेंट्स कि क्या चल रहा है, माहौल क्या है, ठीक है। वंस दे गेट टू नो कि तुम्हारा डिपार्टमेंट कैसा है, वहां पे पैकेज कैसा है, वहां पे तुम्हारे एस्पिरेशंस क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एस्पिरेशंस क्या है, ठीक है। जब ये सब चीजें पेरेंट्स को भी आप डिलीवर करो ना, देन उनके पास एक्चुअली मेरा हमेशा से ये मानना था कि अपने पेरेंट्स को इतना इक्विप करो वो 4 लोगों के सामने आपको डिफेंड कर सके। प्रॉब्लम यही आता है, बच्चे बोलते ही नहीं और पेरेंट्स को पता नहीं होता। कोई आकर सामने से बोल दिया तो पेरेंट्स को लगता है यार ये तो बात है यार, सबका लग रहा है, मेरे बेटे का क्यों नहीं लग रहा है। तो ये एक इशू है, तो सोसाइटल प्रेशर। सो दिस इज हाउ यू शुड हैंडल इट, इंटरैक्ट, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज कॉल्ड द क्लास डिवाइड। रहता है सपोज कोई एक स्टूडेंट है जो गरीब तबके से आया हुआ है, पुअर बैकग्राउंड, एक है जो कि बहुत रिच बैकग्राउंड से आया है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि एक जो पुअर बैकग्राउंड का जो स्टूडेंट होता है ना, तो बहुत बार वो हिम्मत नहीं जुटा पाता कि जैसे एक सपोज एक पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, कोई सेक्रेटरी पोस्ट या कोई भी पोस्ट, उसको पता है कि अगर वो अप्लाई करता भी है और वो जीतता है, उसके बाद या ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस उसको दोस्तों को खाना खिलाना पड़ेगा, दोस्तों को थोड़ा बहुत पैम्पर करना पड़ेगा, उस चीज के लिए उसके पास पैसा नहीं है। तो वो शायद ऐसा हो सकता है कि वो बैकआउट कर जाए क्योंकि ये जो प्रेशर है ना, क्लास डिवाइड, ये दिख जाता है। दूसरी चीज ये होती है कि सपोज आपके दोस्त के पास आईफोन है, आईपैड है, ठीक है, अच्छे अच्छे गैजेट्स हैं, आपके पास नहीं है, तो लाजमी सी बात है, तो आपको थोड़ा थोड़ा बुरा लगेगा ही। तो इसका एक निंजा टेक्निक है हाउ टू सॉल्व दिस,
एंड ये हमेशा आपको हेल्प करेगी और मुझे भी हेल्प करती है हमेशा। तो मैं क्या करता हूं कि जैसे ही एप्पल, क्योंकि एप्पल सबके दिमाग में रहता है, ठीक है, तो जैसे ही एप्पल अपना जो प्रोडक्ट लॉन्च करता है ना, तो मैं यूट्यूब को स्ट्रेट अवे जाता हूं और 3 मेरे फेवरेट टेक यूट्यूबर्स हैं। एक है MKBHD, सेकंड है टेक बर्नर, थर्ड है गिकी रंजित। चलिए शुरू करते हैं, को मैं फॉलो नहीं करता, लेट मी सेटल इट ओवर हियर, ठीक है। तो इन 3 लोगों का मैं रिव्यू पढ़ लेता हूं, देख लेता हूं वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्या फीचर्स है, क्या क्या है, क्या नहीं क्या नहीं, और वो थोड़े बहुत मैं याद कर लेता हूं। तो अगली बार जब आईफोन की बात उठे या आईफोन की बात हो, तो मेरे पास 10 पॉइंट्स है बोलने के लिए। भले ही मेरे पास आईफोन ना हो, बट मेरे पास दूसरे लोगों का एक्सपीरियंस है, और अगर मैं दूसरों को ये चीज बोल के आ पा रहा हूं, ये अच्छा फील करता है, बहुत अच्छा फील करता है। मेरे पास आईफोन नहीं है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये आईफोन से रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, बट देयर आर पीपल हु कम टू मी टू डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ आईफोन, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास नहीं है पर मेरे पास नॉलेज है, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत काम आती है, बहुत ज्यादा काम आती है, मजा ही आ जाएगा, लाइफ ही अलग बन जाएगी अगर आपके पास वो नॉलेज हो। आप अगर 5 पॉइंट बोल पा रहे हो ना, एक बार करके तो देखो, करके देखो, ठीक है। तो सोसाइटल प्रेशर से बचने के लिए एक तो ये निंजा टेक्निक है, ठीक है, आप दूसरों का एक्सपीरियंस सुन के उसको याद रखो। दूसरा ये है कि आपके पास अगर समय बच रहा है, थोड़ा बहुत बच रहा है, देन आप एक ऑनलाइन कोई ट्यूशन टाइप का कुछ पकड़ सकते हो। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो यूट्यूबर बन सकते हो, फोटोग्राफर बन सकते हो, ये हॉबीज में चला जाएगा, ठीक है। हॉबी को भी आप मिल्क कर सकते हो, ठीक है, तो उससे भी थोड़े बहुत पैसे आपके बन सकते हैं, बट माइंडेड आपका जो स्टडीज है, CGP है, वो इसकी वजह से हार्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। यू कैन अर्न सम अमाउंट ऑफ मनी, वो हो सकता है, यू कैन मैनेज, अगर मैनेजमेंट स्किल्स है तो आप थोड़ा बहुत पैसे कमा सकते हो, नॉट बीइंग अ बर्डन एंटायरली ऑन योर फैमिली, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, the most important pressure, that is the education culture that we have across the country, which is very different. Like suppose आप आंध्र प्रदेश चले जाओ, आपको ये मिलेगा कि यार कोचिंग इंस्टीट्यूट क्लास 5 से IIT JEE का कोचिंग दे रही है, क्लास 5 से बच्चे उधर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। यार अगर बच्चा क्लास 5 से ही सिर्फ मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री करेगा, तो इंग्लिश कहां जाएगा, उसका सोशल स्टडीज कहां जाएगा, उसका हिंदी का क्या होगा, उसके इंस्ट्रूमेंट स्टडीज का क्या होगा, तबला, वायलिन, वो सब स्टडीज का क्या होगा, म्यूजिक क्या क्या होगा, डांस का क्या होगा, कौन पढ़ाएगा ये सब चीजें उन्हें? आर दीज थिंग्स वेस्ट? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, पर बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, माँ बाप को बेवकूफ बनाया जाता है ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, सब बड़े बड़े सपने दिखा के पैसे लूट लेते हैं, ऐंठ लेते हैं पैसे इनके, और अल्टीमेटली बच्चे का क्या होता है कि उसका मे बी IIT JEE हो जाता है, पर जब वो IIT के अंदर जाता है ना, अगेन मैंने आपको बोला था वो एक पूल है ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन द कंट्री, ठीक है। तो जब वो अंदर जाता है ना, वो हमेशा भीड़ का हिस्सा रहता है, वो स्टेज पे चढ़ के कुछ नहीं करता, क्योंकि उसको पब्लिक स्पीकिंग का एक्सपीरियंस नहीं रखा आपने, ठीक है। उसको ना इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, ना उसको गाना गाना आता है, ना एंकरिंग आता है, उसको ऑलमोस्ट कुछ नहीं आता। क्या आता है? ही इज वेरी गुड एट मैथमेटिक्स, वेरी गुड एट फिजिक्स, वेरी गुड एट केमिस्ट्री। दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, आई एक्सेप्ट। लेकिन एक बच्चा अगर हमेशा भीड़ का हिस्सा रहेगा, उसमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, वो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेगा, आप खुद ही बताओ, ठीक है। तो मेरी ये दरख्वास्त रहेगी जितने भी पेरेंट्स इसको अगर देख रहे हैं तो, कि प्लीज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी हिस्सा बनाएं अपने बच्चे का, बच्चे के लाइफ का, ठीक है। बिकॉज आगे जाकर वो आपको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है, आपको एक लाइफ में एक एक्स्ट्रा कंफर्ट और एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देती है। ओके, सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो। आई एम वेरी श्योर कि ये सब चीजें आपके काम आने वाली है इन फ्यूचर, और अगर आप IIT में घुस रहे हो तो ये सब चीजें आपको एक्सपीरियंस करना है, ठीक है। यू हैव टू एक्सपीरियंस दिस।
सो अभी से आप रेडी हो जाओ, ठीक है? टेक केयर।